online classes. Myself Gunal Mangale. Student, in the last class we had discussed about the alimentary canal and the part of alimentary canal and how they help in the digestion. Starting from mouth to anus, all the part of alimentary canal we had discussed. Now today we will discuss about the another part of the chapter, that is different type of digestive glands which help in the digestion of food. Okay. So next point is digestive glands. Digestive glands. What is the meaning of digestive glands? These are the special glands which help in the secretion of different hormones or different enzymes. Gland means there are two types of glands, exocrine and endocrine glands. Exocrine glands are called as ducted glands. Endocrine glands are called as ductless glands. So these glands help in the secretion of either enzymes or hormones. So remember, digestive gland help in the digestion of food because they help in the secretion of different digestive substance, digestive juice. Okay, these glands secrete different digestive juice and help in the digestion of food material. Okay, digestive glands help in the digestion of food and they secrete digestive juice. Now, which are the different digestive glands? Okay, types of digestive gland कौन से है? One is called as salivary glands. One is called as salivary glands. Okay, what is salivary glands? These glands are present in the wall of cheeks and open into the buccal cavity, and they help in the secretion of saliva. Okay, they help in the secretion of mucus also. They help in the secretion of lysozyme enzyme also. So these are all called as salivary glands. Now remember, salivary glands are generally three pairs of salivary glands are there. Okay, second type of gland is called as gastric glands. Gastric glands generally present in the stomach. Gastric gland generally present in the stomach help in the digestion of food material, maximum digestion of protein. Okay. Now third is called as liver. That is chocolate colored larger gland in the body is called as liver. Okay. After liver, next is pancreas. Pancreas, it is the leaf sector glands, second largest gland in the body of human being, called a pancreas. And last one is called as intestinal glands. Intestinal gland means these glands located in the intestines and help in the secretion of intestinal juice. So overall, all these five types of glands help in the digestion of food along with alimentary canal, so called as digestive glands. So one by one we now discuss. One by one we have discussed about first salivary gland. Already I told you salivary glands are three pairs. And what is the name? The gland present in front of the cheeks are called as parotid. Parotid glands जो ईयर के आगे है, चेस्ट के अंदर है, उसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स. लार्जेस्ट ग्लैंड है, मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ सलाइवा करता है. कहाँ पे? मोलार टिप के पास ओपन होता है, मोलार टिप के पास, तो उसको बोलते हैं पोलार पैरोटिड ग्लैंड्स. सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. That is submandibular gland means these are the glands. Second number of glands generally located in the lower jaw. Lower jaw के अंदर रहते हैं, उसको बोलते हैं submandibular glands. Okay, located in the lower jaw. And last one is called as sublingual glands. Okay, and they are located below the tongue. ओके, एक बार और बता रहा हूँ लोकेशन सबका. डायग्राम दिया है. पैरोटिड ग्लैंड जो चेस्ट में है, ईयर के फ्रंट साइड में है. ओके, सेकंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो लोअर जॉ के अंदर है, और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो कि टंग के नीचे है. सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द टंग्स. ओके, तो सबसे
बड़ी कौन है? सबसे बड़ी है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट है सीन इन द चीक्स। तो सैलरी पैरोटिड ग्लैंड कितना है? 2 है ना, चीज के अंदर रहती है। ओके, और याद रखो पैरोटिड ग्लैंड्स ओपन इनटू द बकल कैविटी। ओके, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ ओपन होती है? बकल कैविटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट बोलते हैं उसको। ओके, कहाँ पे? जब पैरोटिड ग्लैंड्स बकल कैविटी में ओपन होती है वहां पे क्या रहता है? स्टेंसन डक्ट के द्वारा ओपन होती है ना। और ये भी याद रखो कि मम्स जब होता है, मम्स पैरामीजोवायरस की वजह से जो मम्स होता है, मम्स उसको हम गाल को भी बोलते हैं, तो स्वेलिंग होता है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का, एनलार्जमेंट होता है और उसकी वजह से मम्स होता है पैरामीजोवायरस के अंदर बोल रहा हूं। तो स्टेंसस डक्ट जो है ओपन होती है किसकी? स्टेंसन्स डक्ट्स। ओके, स्टेंसन्स डक्ट जो है पैरोटिड ग्लैंड का रहता है और वो बकल कैविटी के अंदर ओपन होता है। याद रखिए, सैलरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ बकल कैविटी बट ओपन इनसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर वो ओपन होते हैं क्योंकि उसको डक्ट है, इसलिए। सेकंड जो बोल रहा हूं मैं, सबमेंटिबुलर ग्लैंड्स, दे आर ओपन इनटू द बकल कैविटी, ओके, बाय वार्टन्स डक्ट। ओके, व्हिच डक्ट्स? वार्टन्स डक्ट। ओके, डक्ट का नाम बोल रहा हूं मैं। सबमेंटिबुलर ग्लैंड जो है बकल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं और वो और सलाइवा सीक्रेट करते हैं, दे आर ओपन इनटू द बकल कैविटी बाय हेल्प ऑफ वार्टन डक्ट्स। एंड लास्ट, ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट बिलो द टंग एंड दे आर अगेन ओपन इनटू द बकल कैविटी विद हेल्प ऑफ रेविनस डक्ट। ओके, कौन? सबलिंगुअल ग्लैंड जो बिलो द टंग है, ओके, present below the tongue, and these glands open into buccal cavity with the help of which duct? Ravenous duct, also called as Bartholin duct। तो सैलरी ग्लैंड के अंदर क्या रहता है? What is the composition of सैलरी ग्लैंड? मैक्सिमम कंपोजिशन जो है सैलरी ग्लैंड का वो है वाटर, और सैलरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसको हम सलाइवा बोलते हैं। वाटरी सिक्रेशन होता है सलाइवा का, ओके, जिसके अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट रहते हैं, ओके, और द कंटेंट 90 to 99.5% या 99% क्या रहता है? वाटर रहता है। उसी के साथ उसके अंदर म्यूसिन है। म्यूसिन का मतलब म्यूकस फॉर्म होता है, और म्यूकस की वजह से क्या होता है? माउथ के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होता, मॉइस्ट प्लेस कंटेन होता है, इसलिए वो माइक्रोब से प्रोटेक्शन करते हैं। किसको? माउथ के अंदर से जो माइक्रोब जाते हैं उसको, उससे प्रोटेक्शन करता है क्या? म्यूकस जो फॉर्म होता है सलाइवा के अंदर। उसी के साथ साथ सैलरी ग्लैंड के अंदर कुछ एंजाइम भी है, उसको हम बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम रहता है, उसको हम दूसरा एक नाम देते हैं टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च था, पॉलीसैकेराइड था, उसका ब्रेक डाउन करता है और डाइसैकेराइड बनाता है, माल्टोज बनाता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन जो है वो क्या करता है? सलाइवा के अंदर सिक्रेशन होता है और स्टार्च का कन्वर्शन माल्टोज में करता है, पॉलीसैकेराइड का कन्वर्शन डाइसैकेराइड में करता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन। उसी के साथ साथ सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम भी प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज लाइसोजाइम? लाइसोजाइम इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स। बैक्टीरियोलाइटिक, बैक्टीरियो मीans bacteria, lytic means break down. This is the enzyme help in the breakdown of bacterial cell wall and kill the bacteria, so called as lysozyme। और सलाइवा के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, कुछ मिनरल्स भी रहते हैं। Minerals are available in the form of ions, are called as electrolytes, that is sodium, potassium, chlorine and bicarbonate जो रहते हैं उन सभी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सलाइवा, मिक्सचर ऑफ सलाइवा के अंदर रहता है। तो सलाइवा कितना सीक्रेट होता है बेटा? सलाइवा का पीएच क्या है? याद रखिए, द पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8, दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। सिक्रेशन कितना होता है सलाइवा का? अप्रोक्सीमेटली पर डे सिक्रेशन होता है 1 to 1.5 लीटर।
सलावा सिक्रेशन होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्व जो है, पैरासिम्पैथिक नर्व एएनएस का पार्ट जो है, पैरासिम्पैथिक नर्व जो है वो सलावा सिक्रेशन के लिए प्रमोट करते हैं। कौन? पैरासिम्पैथिक। और सिंपैथिक क्या करते हैं? फिर अपोजिट करते हैं, मतलब सलावा सिक्रेशन कम करते हैं। ओके, क्रैनियल नर्व जो है, क्रैनियल नर्व आपको पता होगा 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व होते हैं, प्रेजेंस आते हैं। और उसमें से 7 नंबर एंड 9 नंबर जो क्रैनियल नर्व्स है वो सलावा सिक्रेशन करते हैं। ओके, मैंने बोला आपको ऑलरेडी ये पॉइंट। ओके, और बाकी के पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है। तो सलावा क्या करता है? फूड के साथ मिक्स होता है, उसको हेल्प करती है टंग मिक्स करने के लिए। टंग क्या करती है? फूड को सलावा के साथ मिक्स करती है, फूड के बोलस बनाती है। व्हाट इज बोलस? स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज बोलस। और वो बोलस जो है बनता है, उसी के साथ सलावा के अंदर एक एंटीबॉडी भी बनता है जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, माइक्रोब को किल करता है, एंटीजन को मारता है जो माउथ के द्वारा एंट्री करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और आल्सो कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो सलावा की वजह से फूड का सॉल्विंग इजी होता है। ओके, बोलस फॉर्मेशन होता है, IgA फॉर्मेशन होता है, और माउथ का डिहाइड्रेशन नहीं होने देता कौन? सलावरी ग्लैंड्स। माउथ का जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं होने देता कौन? सलावरी ग्लैंड। तो मैंने आपको अभी सलावरी ग्लैंड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है। नाउ नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वेयर इज प्रेजेंट? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर जनरली लोकेटेड इन द स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो स्टमक के अंदर है। ओके, मैं सलावरी ग्लैंड का पॉइंट रब कर रहा हूँ। सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड में ले रहा हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो स्टमक के अंदर है, और वो क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन करता है। ओके, उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से रिलेटेड। ओके, कहाँ पे? स्टमक के अंदर। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो वाल है एलिमेंट्री कैनाल की, वो 4 लेयर से बनी है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो स्टमक के अंदर मैंने बोला था आपको जो वाल रहती है स्टमक के अंदर की, वहां पे इनफोल्डिंग रहता है स्टमक के अंदर। स्टमक के वाल के अंदर इनफोल्डिंग होता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं रुगे। और ये जो वाल है, स्टमक की वाल है, वहां पे स्मॉल ओके क्लीवेज रहता है, दैट इज called as finger-like substance. Yeah, structure is there, tubular structure is there inside the stomach. These are tubular glands are present inside the stomach. Tubular glands present inside the wall of stomach and they secrete acidic pH. याद रखो, स्टमक के अंदर आपको पता होगा HCl सिक्रेशन होता है, इसलिए स्टमक के अंदर का जो pH है कितना रहता है? 1.8 to 2 रहता है। क्या? pH that is highly acidic होता है, मैक्सिमम एसिडिक कंडीशन होती है। ओके, और उसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस। HCl सिक्रेशन होता है स्टमक के अंदर। ओके, वहां पे स्पेशल सेल HCl सिक्रेशन के लिए हेल्प करते हैं। ओके, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 types of cell. Which of the 3 types of cell? One is called as mucous neck cell, जिसको हम goblet cell भी बोल सकते हैं। Mucous neck cell is also called as goblet cell, जो unicellular glands है, जो mucus secrete करते हैं। ओके, कहाँ पे? tubular gland related. Second type of cell is called as second type of cell is called as chief cell. चीफ सेल का और भी 2 नाम है, zymogen और पेप्टिक सेल भी बोलते हैं उसको। zymogen आल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल भी बोलते हैं किसको? चीफ सेल को बोलते हैं zymogen या पेप्टिक सेल बोलते हैं। और लास्ट वन इज कॉल्ड एज ऑक्सेंटिक सेल। लास्ट वन इज कॉल्ड एज ऑक्सेंटिक सेल, जो स्टमक के अंदर जो ट्यूबुलर इनके लोग ऑक्सेंटिक सेल बनते हैं। और ऑक्सेंटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड एज पैराइटल सेल। ऑक्सेंटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड एज
पैराइटल सेल, तो याद रखो स्टमक के अंदर जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स है उसके अंदर 3 टाइप के सेल बनते हैं। ओके, म्यूकस नेक सेल, गॉबलेट सेल है जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है। ओके, सीड सेल दैट इज zymogen सेल जो है वो उसका फंक्शन क्या है सीड सेल का, और ऑक्सीडेटिव सेल का फंक्शन क्या है देखो वन बाय वन आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं। पहला म्यूकस नेक सेल इज द सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस एंड म्यूकस हैज बाइकार्बोनेट ऑफ इन इट। म्यूकस के अंदर क्या है बाइकार्बोनेट भी है। याद रखो ये सेल की वजह से म्यूकस सीक्रेशन भी होता है और बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इस म्यूकस की वजह से और बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है जो स्टमक की इनर वॉल है उसका प्रोटेक्शन होता है। किससे HCl से। टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल म्यूकस एपिथेलियम फॉर्म करता है। म्यूकस की वजह से क्या होता है बेटा, म्यूकस की वजह से स्टमक के अंदर की जो वॉल है ओके वहां पे म्यूकस फॉर्म होता है और वो म्यूकस क्या करता है स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन करता है। किससे HCl से। HCl से प्रिवेंट करता है और उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो डाइजेशन। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, डाइजेशन मीन ब्रेक डाउन। ओके, HCl की वजह से क्या होने वाला था स्टमक की वॉल ब्रेक होने वाली थी क्योंकि वो एसिडिक नेचर है। मगर ये म्यूकस और ये बाइकार्बोनेट जो म्यूकस सेल से बनता है वो क्या करता है स्टमक की वॉल का प्रोटेक्शन करता है, उसको डाइजेशन नहीं होने देता, उसको ब्रेक होने नहीं देता, ओके डैमेज नहीं होने देता, उसको प्रोटेक्शन करता है। Prevent to damage the wall of stomach internally by mucus and what bicarbonate secreted by the mucous neck cell. एक correct. Second is what है chief cell, zymogen cell, peptic cell, very important. And this cell secretes कौन peptic cell जो है zymogen cell जो है वो क्या करते हैं secrete करते हैं क्या they secrete proenzymes. Proenzymes मीन्स प्रिमिटिव एंजाइम फॉर्म करते हैं। कौन से पेप्सिनोजीन, जिसकी वजह से पेप्सिन बनता है और पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था एडल्ट ह्यूमन में प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए पेप्सिनोजीन सीक्रेट होता है और पेप्सिनोजीन की वजह से पेप्सिन बनता है और पेप्सिन की वजह से क्या होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है। एडल्ट में बोल रहा हूं और फेटस में क्या होता है स्मॉल चाइल्ड में क्या होता है जो मिल्क पीता है बच्चा उसमें क्या होता है प्रोरेनिन फॉर्म होता है। प्रोरेनिन फॉर्म होता है जो मिल्क का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है ना कौन प्रोरेनिन। ओके, तो इसका मतलब ये चीफ सेल से क्या क्या बन रहा है चीफ सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट पेप्सिनोजीन और जिससे बाद में पेप्सिन बनता है और प्रोटीन डाइजेशन करता है और दूसरा क्या बनता है प्रोरेनिन बनता है। प्रोरेनिन बनता है और जो मिल्क का डाइजेशन करता है कहां पे इन्फांट में। इन्फांट मीन्स जस्ट बॉर्न बेबी जो है मिल्क पीता है मदर का और उसमें प्रोटीन मिल्क प्रोटीन जो है केसिन नाम का उसका डाइजेशन करने के लिए हेल्प होता है किसका प्रोरेनिन का जो चीफ सेल प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट वहां पे लाइपेज भी फॉर्म होता है। लाइपेज क्या फॉर्म होता है गैस्ट्रिक लाइपेज भी फॉर्म होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो समॉट लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। लिपिड मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज भी बनता है वहां पे और वो भी कौन बनाता है चिप सेल या पेप्टिक सेल से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट वाले सेल जो मैं बोल रहा हूं आपको ऑक्सिनेटिक सेल। ओके, वन बाय वन सेल हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले बोला था मैंने म्यूकस सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करती थी। दूसरे बोला मैंने चिप सेल जो पेप्सिनोजीन प्रोड्यूस कर रही है, प्रोरेनिन प्रोड्यूस कर रही है, लाइपेज प्रोड्यूस कर रही है कौन चिप सेल या पेप्टिक सेल। और लास्ट ऑक्सिनेटिक सेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जो कि स्टमक के वॉल के अंदर रहती है एंड दैट सेल हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ HCl. व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो डायरेक्ट फॉर्म में फॉर्म होता है और उसी के साथ वहां पे एक फैक्टर फॉर्म होता है उसका नाम है कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर। कौन प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सिनेटिक सेल की वजह से HCl सीक्रेट हो रहा है और उसी के साथ क्या कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर भी फॉर्म होता है जिसकी वजह से विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है कहां पे स्टमक के वॉल में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सिनेटिक सेल की वजह से HCl प्रोड्यूस होता है उसी के साथ कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर फॉर्म होता है और वो क्या करता है फैक्टर
विटामिन B12 जो है उसका अब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्प करता है। कौन? कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर, जो किससे बनता है? ऑक्सीडेटिव सेल से या पैराइटल सेल से बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ओके, दिस ऑल अबाउट दैट ग्लैंड्स। ओके, और मैं आपको बोल रहा हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें चीफ सेल जो है, चीफ सेल वो क्या करते हैं? पेप्सिन इनटू या पेप्सिनोजेंस टू पेप्सिन करते हैं, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और आपको पता होगा प्रोटीन जो है वो मिल्क डाइजेशन करता है, नोन एज काइमोसिन। क्योंकि आपको पता होगा स्टमक के अंदर का जो फूड है उसको बोलते हैं हम लोग काइम, CHYME। एसिडिक फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज काइम बोलते हैं, और इसलिए उसको हम बोलते हैं काइमोसिन बोलते हैं। किसको? रेनिन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव सेल से जो रेनिन बनता है, प्रोरेनिन से रेनिन बनता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग काइमोसिन बोलते हैं। ग्लूकोज सेल का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ऑलरेडी। ओके, और उसी के साथ साथ वो जो कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर मैंने बोला था, उसकी वजह से और एक काम होता है। एक तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन भी करते हैं वो, और उसी के साथ साथ उनका सेकंड फंक्शन जो है इलेक्ट्रोपोइसिस भी है। व्हाट इज इलेक्ट्रोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ RBC भी करते हैं। कौन? कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर्स। ओके, ग्लूकोज सेल से क्या बन रहा है? बाइकार्बोनेट बन रहे हैं। ओके, कॉर्बोनेट सेल से बाइकार्बोनेट, और इससे क्या बन रहा है? बाइकार्बोनेट्स बनते हैं और ग्लूकोज बनता है, जो ये सेल से एक्सपोरेशन नहीं होने देता। एक्सपोरेशन मतलब क्या? ब्रेक डाउन। ये सेल की वजह से जो स्टमक की वॉल ब्रेक डाउन होने वाली थी, एक्सपोरेट होने वाली थी, उसको नहीं होने देता। कौन? ग्लूकोज एंड बाइकार्बोनेट, जो ग्लूकोज सेल से प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर दो सेल रहते हैं, जी सेल एंड डी सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जी सेल? जी सेल सीक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन। जी सेल जो है ओके, वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, एंड गैस्ट्रिन हेल्प इन द इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक जूस, एंड डी सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन डिक्रीज द गैस्ट्रिक जूस। डी सेल की वजह से सोमैटोस्टैटिन फॉर्म होता है और वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम करता है, और जी सेल की वजह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन इंक्रीज होता है। ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट इज लीवर। अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज लीवर। स्टमक के बाद थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड जो मैं बता रहा हूं आपको। ओके, क्या क्या हो गया अभी तक? सैलिवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। नाउ थर्ड इज लीवर। लीवर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। लीवर भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करती है। सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और पता होगा लीवर कहाँ रहता है? जनरली आपकी बॉडी में राइट साइड में रहता है लीवर, और उसके अंदर दो लोब रहते हैं ना। लीवर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोब्स? लीवर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ओके, और लीवर के अंदर से कुछ डक्ट्स आते हैं। फ्रॉम द लीवर सम डक्ट अराइज, कुछ डक्ट्स अराइज होते हैं। कहां से? लीवर से। तो आपको पता होगा जो डक्ट लीवर से आती है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। ओके, हिपैटिक डक्ट बोलते हैं क्योंकि हिपैटिक लीवर के सेल को बोलते हैं हम लोग हिपैटिक सेल। लीवर के अंदर जो सेल है उसको हिपैटिक सेल बोलते हैं। और हिपैटिक डक्ट आता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट लोब है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। लीवर के अंदर वैसे दो लोब होते हैं और दो डक्ट आते हैं, दोनों का हिपैटिक डक्ट बनता है। बाद में हिपैटिक डक्ट के अंदर बाइल जूस सीक्रेट होता है और वो आके गॉल ब्लैडर के अंदर एंट्री करता है ना। कहाँ आता है वो? गॉल ब्लैडर के अंदर। मतलब हिपैटिक डक्ट है और ये कौन है? दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिससे कौन आती है? सिस्टिक डक्ट आती है। सिस्टिक डक्ट आती है किससे? गॉल ब्लैडर से। और दोनों का मिला के क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। दोनों का मिला क्या बनता है? ओके, दोनों कंबाइन होकर क्या बनते हैं? बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। समझ रहे ना? लीवर के अंदर से आने वाला हेपेटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर से आने वाला सिस्टिक डक्ट है। दोनों का कंबाइन होके कॉमन बाइल डक्ट बनता है और वो नीचे जाता है कहाँ पे? पैंक्रियास की तरफ। कहाँ जाता है? पैंक्रियास की तरफ जाता है और इधर से
इधर से क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट आती है ना। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास। और पैंक्रियास से क्या आती है, पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। और पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज व्हाट, पैंक्रियाटिक डक्ट। और ऊपर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट, दोनों का मिला के क्या होता है फिर, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर। ये दोनों कंबाइन होते हैं और दोनों से क्या बनता है, दोनों का मिला के क्या बनता है, पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो ऊपर से आती है, मतलब कहां से, गॉल ब्लैडर और हेपेटिक डक्ट से, ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है एंड दैट ओपन इनटू डिओडिनम। ये कहां ओपन होती है, डिओडिनम के अंदर ओपन होती है। ओके, याद रखो, व्हाट इज डिओडिनम? डिओडिनम इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ओपन होती है कौन, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। और याद रखिए, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ओपन इनटू द स्मॉल intestine, open into duodenum, and it is guarded by, it is controlled by what? Sphincter of Oddi. हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती है कहां पे, डिओडिनम में, उसको गार्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, दिस इज द what muscular sphincter gland, circular gland is there. So this is about the structure of लीवर। ये लीवर का स्ट्रक्चर है। लीवर का अंदर आप स्ट्रक्चर देखते हो, लीवर क्या है, लार्जर ग्लैंड है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम है। रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, चॉकलेट कलर का ग्लैंड है। उसको हम चेक पोस्ट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो फूड के द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस जाते हैं या ड्रग्स जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, लीवर। और स्पेशली आपको पता होगा, जो अल्कोहल पीने वाले पर्सन है, अल्कोहलिज्म करने वाले, उनका लीवर जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर, अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो लीवर यूटिलाइज करता है और लीवर ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। लीवर का स्ट्रक्चर आप देखते हो, लीवर बायलोब्ड है। ये राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है। ओके, स्मॉल जो है लेफ्ट लोब है और ईच लोब इज फाउंड बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन इट कॉल्ड एज हिपैटिक लोब्यूल्स। हर एक लोब के अंदर क्या है बेटा, लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स। उस लोब्यूल को हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। और दैट हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड विथ एपिथेलियल टिश्यू सेप्टम कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ये हिपैटिक लोब्यूल जो है, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स, एक हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, तो आपको हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या दिखेगा, ये वेन दिखेगी ऐसी। ओके, एक वेन है, ब्लड वेसल है, जिसको हम सेंट्रल वेन कहते हैं लोब्यूल के अंदर। और ये हिपैटिक लोब्यूल है, दिस इज हिपैटिक लोब्यूल्स। और उसके अंदर क्या है, ये सेंट्रल वेन बोलते हैं उसको। और इसके ऊपर क्या रहता है, ऑन दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। हिपैटिक लोब के ऊपर क्या है, ये सेल है, कॉर्ड लाइक अरेंज होते हैं, कार्ड फिल लाइक अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं सेल्स। और उसी सेल के अंदर साइनोसाइड भी होता है। और याद रखो, उस सेल को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट। द सेल इनसाइड द लिवर इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं उस सेल को, हिपैटोसाइट बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ साइनोसिस भी रहते हैं, साइनोसिस। व्हाट इज साइनोसिस? हिपैटोसाइट सेल के अंदर जो गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं साइनोसिस। और उस साइनोसिस के अंदर क्या रहता है, कुपर सेल रहते हैं, कुपर सेल, जो कि फैगोसाइटिक है। साइनोसिस के अंदर कुपर सेल फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ पे दो टाइप के सेल फॉर्म होते हैं लीवर के अंदर, एक हिपैटोसाइट सेल है और दूसरा साइनोसिस के अंदर बनने वाला कुपर सेल है। ओके, ऐसे दो सेल बनते हैं, कुपर सेल्स एंड हिपैटोसाइट सेल है। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बोलते हैं। लोब्यूल हैज मेनी हिपैटिक सेल्स अरेंज इन द कॉर्ड। देखो, हिपैटिक सेल जो है, हिपैटोसाइट मतलब हिपैटिक सेल जो अरेंज होते हैं कैसे, कॉर्ड जैसे अराउंड द सेंट्रल वेन। या अंदर का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं
ये जो है क्या है, सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन है। और वो सेंट्रल वेन क्या करती है, इस कॉर्ड से कनेक्ट करती है किसको, हिपैटिक आर्टरी को, हिपैटिक वेन को। ओके, व्हाट इज दिस, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी है। ओके, हिपैटिक आर्टरी जो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, हिपैटिक वेन जो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इशू, मतलब लीवर से ब्लड इशू करती है, उसको हिपैटिक वेन बोलते हैं। ओके, और सेंट्रल वेन को बोलते हैं बेसिकली अल्कलाइन बाइल जूस। हिपैटोसाइट से क्या बनता है बेटा, अल्कलाइन जूस बनता है, बाइल जूस बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बाइल जूस बनता है। और बाइल जूस के अंदर क्या रहता है, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल जूस कंटेंट, ओके, हिपैटोसाइट सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हिपैटोसाइट सेल से क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। और उस बाइल जूस के अंदर क्या है, दो कंपोनेंट है, वन इज बाइल साल्ट है जो जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, और दूसरा जो है दैट इज बाइल पिगमेंट भी है, बाइल पिगमेंट भी है। व्हाइट बाइल पिगमेंट्स एक ऐसे पिगमेंट्स जिसका नाम है बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, उसको बाइल पिगमेंट बोलते हैं। जो कैसे बनते हैं, लीवर से, लीवर के अंदर जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे ये बाइल पिगमेंट बन जाते हैं, जिसका नाम मैंने बोला आपको बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। और वो क्या करते हैं, जनरली दैट बाइल पिगमेंट्स आर मिक्स्ड विद द फूड मटेरियल एंड गिव कलर टू द फेकल मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो बाइल पिगमेंट्स है फूड के साथ मिक्स होते हैं और वो फेकल मैटर को कलर देते हैं। कौन, बाइल पिगमेंट्स। एमसीक्यू में आया था, नीट को आया था क्वेश्चन, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन बनता है। और बाइल साल्ट क्या करता है, बाइल साल्ट क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट के ग्लोब्यूल को बनाता है, या उसको मेसेज बोलते हैं हम लोग, फैट के ड्रॉपलेट बनाता है, इजी डाइजेशन करता है किसको, फैट को। और लीवर का लोब जो बोला मैंने आपको, ये जो लीवर का लोब्यूल है, ओके, जो लीवर का लोब्यूल है, द लोब्यूल ऑफ द लीवर इज कवर्ड विद ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या है, लीवर का जो लोब है उसका रंग कौन है, ग्लिसन्स कैप्सूल है, कवर है। ओके, ये भी क्वेश्चन नीट को आया था। लोब्यूल का जो कवर है लीवर के अंदर उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो याद रखो, आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखता होगा, लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है और बाइल जाता कहाँ है, कहां से कहां है, याद रखो। तो पाथ ऑफ बाइल, पाथ ऑफ बाइल, बाइल कहां से कहां जाता है, याद रखो। सबसे पहले बाइल बनता है लीवर में, बाद में वो कहां जाता है, हिपैटिक डक्ट में जाता है। हिपैटिक डक्ट में से कहां जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है। इसका मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है और लीवर के अंदर बाइल जूस सीक्रेट होता है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया बाइल जूस प्रोड्यूस इन डैश ऑर्गन एंड स्टोर इन डैश ऑर्गन, तो प्रोड्यूस होता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाद में गॉल ब्लैडर से कहां आता है, सिस्टिक डक्ट में आता है। सिस्टिक डक्ट से कहां आता है, कॉमन बाइल डक्ट में आता है। कॉमन बाइल डक्ट से कहां आता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट में आता है। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से कहां आता है, ड्यूओडेनम में आता है। और ड्यूओडेनम में आने के बाद वहां पे बाइल जूस के अंदर के दोनों कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं। कौन, बाइल साल्ट जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, और बाइल पिगमेंट्स जो फेकल मैटर को कलर देते हैं, जिसका नाम है बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। रिपीट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीट के लिए क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। तो याद रखना चाहिए आप कि क्या है इसका काम, कैसे ये काम करते हैं लीवर से रिलेटेड। और मैंने बोला था आपको पहले, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है इसको गार्ड करने वाला जो स्फिंक्टर्स है, जो मसल है, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है नाम इसका, जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है। याद रखो, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। बाइल हैज नो एंजाइम्स, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। इसका मतलब बाइल की वजह से कोई भी फूड मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन, फैट का ब्रेक, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, ये सभी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, क्योंकि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। मगर बाइल के अंदर क्या है,
बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, उसका नाम है बिलिरुबिन बिलिरुबिन, और बाइल साल्ट जो है उसी के साथ साथ बाइल साल्ट के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी है और फॉस्फोलिपिड भी है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, बाइल के अंदर क्या है, बाइल साल्ट है जो फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल भी है और फॉस्फोलिपिड भी है। ओके, फॉस्फोलिपिड भी है। तो ये पूरे पार्ट है लीवर के, लीवर का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। ओके, और पीएच कितना रहता है, बाइल का जो पीएच है, बाइल के अंदर का जूस है वो ग्रीनिश येलो कलर का है और उसका पीएच कितना रहता है 7.4 to 8.4 रहता है। और इसका सिक्रेशन कितना होता है 700 to 1000 ml बाइल प्रोड्यूस एवरी डे। बाइल का कलर ग्रीनिश है और उसका जो सिक्रेशन होता है पर डे 700 to 1000 ml होता है पर डे। बाइल का सिक्रेशन होता है ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड है और उसी के अंदर भी और 85% वाटर है बाइल के अंदर। ओके, और डाइजेशन नहीं करता फूड का मगर हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल का फंक्शन क्या क्या है, फिर पहला फंक्शन बोला मैंने फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, दूसरा फंक्शन बोला मैंने ड्यू कलर टू द फेकल मैटर, फेकल मैटर को कलर देता है, तीसरा फंक्शन बोला मैंने एक्टिवेट द एंजाइम लाइपेज, लाइपेज नाम का जो एंजाइम है, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम लाइपेज को एक्टिवेट करता है कौन, बाइल साल्ट, मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करता है, लिपिड को ब्रेकडाउन नहीं करता, लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है एंड हेल्प इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक चेन इनटू ड्यूडेनम। आपको पता है स्टमक के अंदर जो फूड था वो कैसा था, एसिडिक था, अभी वो फूड न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब एसिडिक चाइल्ड का कन्वर्शन न्यूट्रल चाइल्ड में बनाएगा, चाइल्ड, क्योंकि सेमी फ्लूइड फूड मटेरियल जो इंटेस्टाइन में आता है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, CHYLD बोलते हैं, तो उसके लिए हेल्प करता है कौन, लीवर। ओके, और उसी के साथ साथ लीवर के अंदर विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन स्टोर विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12 भी है। लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस होता है, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्म होता है, लीवर हेल्प इन द ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन शुगर। ओके, या ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है, लिपोजेनेसिस होता है, लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड फॉर्मेशन भी होता है। ओके, एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ओके बाय कोपर सेल एंड कुछ प्लाज्मा सेल के अंदर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन भी बनता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है ना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन फॉर्मेशन भी होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। और उसी के साथ साथ हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी है जिसकी वजह से लीवर की वजह से क्या होता है, उसको जठराग्नि बोलते हैं हम लोग, जठराग्नि बोलते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। ओके, प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड हार्मोन्स, एंजियोटेंसिनोजेन एंड इरिथ्रोपोइटिन फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, एंजियोटेंसिनोजेन। ओके, एंजियोटेंसिनोजेन नाम का हार्मोन फॉर्म होता है जो किडनी का फंक्शन रेगुलेट करता है, और इरिथ्रोपोइटिन है जो आरबीसी प्रोडक्शन करता है। और लीवर क्या है, हेमोपोइटिक ऑर्गन इन द फेटस, मतलब फेटस में, छोटे बच्चे में, मतलब बेबी जो है मदर के में उसमें हेमोपोइसिस करता है, मतलब ब्लड से फॉर्म करता है, और वो हेमोलाइटिक ऑर्गन भी है कहाँ पे, अडल्ट में, जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये हो गया लीवर के बारे में। नेक्स्ट इज अनदर ऑर्गन इज पैंक्रियास। ओके, अनदर डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास का क्या फंक्शन है देखते हैं, पैंक्रियास कैसे काम करते हैं देखते हैं। मैंने आपको बोला था पैंक्रियास रहती कहाँ पे है, डिओडिनम के साइड में है ना, लीप लाइक, लीप के जैसा एक ग्लैंड है, ये अगर डिओडिनम है ऐसा तो इसके बाजू में ये ऐसा पैंक्रियाटिक ग्लैंड रहता है, एक्चुअली इट इज लीफ लाइक, और यहाँ पे कॉमन पाइल डक्ट ओपन होता है ऊपर से, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। और अगर आप पैंक्रियास का सेक्शन लिखते हो, इफ यू टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैंक्रियास देन यू फाइंड आउट व्हाट, पैंक्रियास के अंदर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम पार्ट जो है एक्सोक्राइन पार्ट मिलता है जिसको हम आसिनी बोलते हैं।
अप्रोक्सीमेटली 98% पार्ट जो है ओके क्या बोलता है मिलता है आपको एक्सोक्राइन मिलता है ओके जिसको हम बोलते हैं आसिनी। ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको हम आसिनी बोलते हैं ओके। और जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं ना कौन आसिनी ACI उसको एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। आसिनी इज नथिंग बट द एक्सोक्राइन पार्ट दैट मींस दे हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। याद रखो इसलिए लीवर पैंक्रियास इज आल्सो कॉल्ड एज पैंक्रियास क्या करता है एक्सोक्राइन पार्ट को प्रोड्यूस करता है आसिनी और उसी के साथ साथ इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी प्रोड्यूस होता है इसलिए पैंक्रियास को कहते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स। इसको पैंक्रियास को क्या बोलते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है जिसको हम आसिनी बोल रहे हैं ना आसिनी बोल रहे हैं और एंडोक्राइन पार्ट भी प्रोड्यूस होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो है याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं एंडोक्राइन पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग आइलेट्स ऑफ लांगरहांस। एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियास के अंदर उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लांगरहांस ओके। आइलेट्स ऑफ लांगरहांस बोलते हैं किसको एंडोक्राइन पार्ट को। इसका मतलब पैंक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट आसिनी जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है एंडोक्राइन पार्ट जिसको हम आइलेट्स ऑफ लांगरहांस बोलते हैं। और याद रखो इस आइलेट्स ऑफ लांगरहांस के अंदर 4 टाइप के सेल बनते हैं ना। तो पैंक्रियास के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं मैं ओके इसके अंदर 4 टाइप के सेल बनते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म इन द पैंक्रियास दैट इज ओके 4 टाइप के सेल बनते हैं पैंक्रियास के अंदर इंटरनली एंडोक्राइन पार्ट के अंदर। कौन से 4 टाइप के सेल है वन इज अल्फा सेल सेकंड इज बीटा सेल सेकंड इज कॉल्ड एज बीटा सेल थर्ड इज कॉल्ड एज डेल्टा सेल और चौथा जो बोल रहा हूं मैं आपको एफ सेल। ऐसे 4 टाइप के सेल बनते हैं कहां पे एंडोक्राइन पार्ट में। सो पैंक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स सीन ऑन द नियर द ड्यूडेनल लूप। ड्यूडेनल का जो लूप है सी सेपरेट ड्यूडेनम जो लूप जो है उसके बाजू में रहता है। इट इज क्रीम कलर्ड ग्लैंड हिट्रोक्राइन ग्लैंड है हैज बोथ एक्सोक्राइन नेचर कॉल्ड एज आसिनी एंड एंडोक्राइन नेचर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लांगरहांस। ऐसे दोनों पार्ट उसके अंदर रहते हैं आपको दिखते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से सीक्रेट होता है ओपन इनटू द ड्यूडेनम अलोंग विद द बाइल डक्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसको डक्ट रहते हैं ट्यूब रहते हैं और वो ट्यूब क्या होते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट को कंबाइन होके बाद में ट्यूब कहां होती है ओपन ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है अलोंग विद द बाइल डक्ट जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। मैंने पहले बोला आपको लीवर से आने वाली गॉल ब्लैडर से आने वाली दोनों से मिलकर आने वाली कॉमन बाइल डक्ट है और पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट है दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट अल्कलाइन सब्सटेंस कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। अल्कलाइन मतलब जिसका पीएच 7 के ऊपर है। मैंने पहले ही बोला था आपको स्टमक के अंदर फूड एसिडिक था और इंटेस्टाइन के अंदर फूड अल्कलाइन बन रहा है। कौन कौन बना रहा है अल्कलाइन बाइल साल्ट जिसकी वजह से फूड अल्कलाइन बन रहा था और अभी पैंक्रियाटिक जूस जो बनता है वो भी फूड को अल्कलाइन बनाता है एंड दे कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स प्रोटीएजेस। व्हाट इज प्रोटीएजेस? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनते हैं ना कहां पे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनते हैं। उसके नाम बता रहा हूं मैं। स्टमक के अंदर बना था पेप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, पेप्सिनोजिन बना था, प्रोटीनिन बना था जिसकी वजह से पेप्सिन बनता था। अब यहाँ पे जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहे हैं ना उसको हम बोल रहे हैं प्रोटीएजेस। कौन कौन से नाम है? ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस एंजाइम है ना। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोटीएजेस एंजाइम जो है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले उसका नाम है ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। उसी के साथ अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, लाइपेजेस जो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस ब्रेक डाउन द लिपिड एंड लास्ट पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएजेस
ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड्स। इसका मतलब सभी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है डाइजेस्ट होते हैं कहाँ पे, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है पैंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा है और न्यूक्लिक एसिड को भी ब्रेक डाउन कर रहा है। इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस में ऐसा पावर है कि जो मैक्सिमम एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो मैक्सिमम डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर। इसका मतलब मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है उसके अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैंक्रियाटिक सेल। अभी मैंने जो आपको बोला सेल एक्सोक्राइन पार्ट से, तो मैंने बोला आपको एंजाइम सेक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूस। अब आइलैंड्स ऑफ लैंगरहांस जो एंडोक्राइन पार्ट, उससे 4 सेल बनते हैं। अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड के अंदर का शुगर लेवल बढ़ाता है और सेल को ग्लूकोज नहीं लेने देता। कौन, ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से क्या बनता है, अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है, ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर का ग्लूकोज इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी सेल ग्लूकोज नहीं ले पाती, यूटिलाइज नहीं कर पाती, इसलिए ग्लूकागॉन की वजह से ब्लड के अंदर का ग्लूकोज बढ़ता है। एक दूसरा, बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है, कम करता है। इसका मतलब नॉर्मल पर्सन में अगर इंसुलिन है तो बॉडी नॉर्मली वर्क करती है और इंसुलिन क्या करता है, बॉडी सेल को ग्लूकोज को लेने के लिए प्रमोट करता है। मतलब जब इंसुलिन होगा, इंसुलिन रिसेप्टर होगा तो बॉडी सेल ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी, और अगर इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी, तो वो पर्सन में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता ब्लड में, बॉडी सेल में, और इसीलिए ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और इसीलिए उसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज मेलिटस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायबिटीज के 2 टाइप है, डायबिटीज इंसाइपिडस और डायबिटीज मेलिटस। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या बनता है, डायबिटीज मेलिटस बनता है। उसको हम ग्लाइकोजूरिया भी बोलते हैं। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, इसलिए ग्लूकोज अपीयर इन द यूरिन आल्सो, एग्जामिन इन द यूरिन आल्सो। उसको हम ग्लाइकोजूरिया भी बोलते हैं। ओके, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा सेल क्या करता है, डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, ये दोनों का लेवल कम करता है। किसका, डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन, और उसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों का लेवल कम होता है। किसका, ग्लूकागॉन का, और इंसुलिन का लेवल मेंटेन करता है। कौन, सोमैटोस्टैटिन। और लास्ट जो सेल में बोल रहा हूं आपको, लास्ट सेल पड़ा एफ सेल सीक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। एफ सेल प्रोड्यूस व्हाट, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब वन टाइप का प्रोटीन बनता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग एफ सेल सीक्रेशन। और याद रखो, एंडोक्राइन पार्ट जो है बहुत कम है। कितना है, 1 to 2% है ओनली। एंडोक्राइन पार्ट कितना है, 1 to 2% है। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है मैक्सिमम है। कितना, एक्सोक्राइन पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली 98 to 99%। 98 to 99% है कौन, एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियास के अंदर का। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया पैंक्रियास का। लास्ट ग्लैंड में आपको बताने जा रहा हूं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड मींस दिस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स। पैंक्रियास के बाद लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड में बताने जा रहा हूं आपको, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके, जो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिंपल ट्यूबुलर है और उसके अंदर 2 पार्ट बनते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्रिप्ट। ओके, क्रिप्ट ऑफ लिब्रनखंड। ओके, क्रिप्ट ऑफ लिब्रनखंड बोलते उसको हम। ओके, लिबरखंड बोलते हैं, LIBER
BER, ओके, KUHN, लिवर फन बोलते हैं उसको हम, ये लिवर फन बनता है। एंड दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज कॉल्ड एज गोबलेट सेल। गोबलेट सेल बनता है लिवर फन के अंदर। क्रिप्ट ऑफ लिवर फन जो है, क्रिप्स ऑफ लिवर फन जो है वहां पे गोबलेट सेल रहते हैं, ओके, गोबलेट सेल रहते हैं। और एंजाइम सीक्रेटिंग सेल है कॉल्ड एज पैनिक सेल, ओके, एंजाइम सीक्रेटिंग सेल कॉल्ड एज, ओके, पैनिक सेल रहते हैं ना। गोबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस एंड पैनिक सेल सीक्रेट, पैनिक सेल जो है वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं क्या, एंजाइम्स, ओके, इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स फॉर्म करते हैं वो, कौन, पैनिक सेल, ओके, जिसको हम सकस इंट्राइकस वगैरह बोल सकते हैं। और सेकंड जो है दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स, आल्सो कॉल्ड एज डिओडिनल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ओके, जिसको हम डिओडिनल ग्लैंड बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे जो सब म्यूकोसा नाम का लेयर है, कौन सा लेयर, सब म्यूकोसा, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन के वॉल में सबसे बाहर सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा के अंदर रहता है सेल, ओके, डिओडिनम के अंदर सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम के अंदर ये सेल रहते हैं, कौन से, ब्रूनर ग्लैंड नाम के सेल रहते हैं। और बोला था मैंने इलियम के अंदर पेयर पैचेस रहते हैं, इलियम के अंदर पेयर पैचेस रहते हैं। और डिओडिनम के सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स है एंड दे secrete also what, mucus, they also secrete what, क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ये क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ओके, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या बनता है, अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस बनता है कॉल्ड एज सकस इंट्राइकस। क्या बनता है, सकस इंट्राइकस बोलते हैं, ओके, सकस इंट्राइकस। क्या है सकस इंट्राइकस, अल्कलाइन जूस है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से अल्कलाइन जूस बनता है, उसका नाम है सकस इंट्राइकस। एंड दे कंटेन एंजाइम्स, इस सकस इंट्राइकस के अंदर और एंजाइम्स है जो फाइनल डाइजेशन करते हैं। फाइनल डाइजेशन कौन से है एंजाइम्स, माल्टेज जो माल्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है, लैक्टेज जो लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है, सुक्रेज जो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करके, ओके, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है, डाइपेप्टाइडेज जो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करके अमीनो एसिड बनाता है, लाइपेजेस जो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करता है, न्यूक्लियोसाइडेज जो न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर बनाता है, कौन, न्यूक्लियोसाइडेज। और लास्ट बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस भी बनता है, बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस बनता है यहाँ पे, ओके, और दैट प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर द प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जैसे मैंने बोला था स्टमक के अंदर भी म्यूकस सेल से म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट बनता था, वैसे यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस सीक्रेट होता है। और वो क्या करता है, एक तो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और इंटेस्टाइन के वॉल को प्रोटेक्शन करता है। इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है उसका प्रोटेक्शन करता है, कौन, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। सो दिस इज अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है और उसके अलग अलग फंक्शंस है, ओके, और उसके अंदर पैनिक सेल जो मैंने बोला आपको सीक्रेट लाइसोजाइम्स। पैनिक सेल जो है उससे क्या बनता है, सकस इंट्राइकस बनता है और लाइसोजाइम भी बनता है जो इंटेस्टाइन के अंदर आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है, कौन, पैनिक सेल्स, ओके, लाइसोजाइम एंजाइम सकस इंट्राइकस एंड एंट्रोएंडोक्राइन सेल सीक्रेट हार्मोन सीक्रेटिन, ओके, उसी के साथ क्या बनता है, यहाँ पे हार्मोन बनता है, कौन सा, सीक्रेटिन नाम का। कौन बनाता है, एंट्रोएंडोक्राइन सेल सीक्रेट हार्मोन सीक्रेटिन, ओके, और ब्रूनर ग्लैंड जो है वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, मैंने बोला पहले बोला आपको, ओके, और उसको हम बोलते हैं सकस इंट्राइकस। सो
This is about the all 5 types of glands help in the digestion of food. In your syllabus we are complete. मतलब अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो चुका है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरा हो चुका है और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पूरा हो चुका है. पॉइंट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डाइजेशन ऑफ फूड बताऊंगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे. Classifications by way of thickness and so on. Apart from the alimentary canal, the digestive system also consists of the salivary glands, liver, and the pancreas, which are collectively known as the digestive glands. The salivary glands, located just outside the oral cavity, secrete salivary juices into the cavity. There are 3 pairs of salivary glands. The parotid gland, located in the cheek, the submaxillary or submandibular gland, found in the lower jaw, and the sublingual gland, located below the tongue. The liver, the largest gland of the body, is located in the abdominal cavity, just below the diaphragm. It has 2 hepatic lobes, which are covered by a thin connective tissue sheath called the Glisson's capsule. These lobules contain hepatic cells called hepatocytes, which are arranged in the form of cords. The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in the gallbladder. A duct emerging from the gallbladder, along with the hepatic duct from the liver, forms the common bile duct, whose main function is to conduct the bile stored in the gallbladder into the duodenum. Apart from the liver, the digestive glands also include the pancreas. Situated in the duodenum, the pancreas is a compound and elongated organ consisting of exocrine and endocrine parts. While the exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes, the endocrine portion secretes hormones such as insulin and glucagon. The pancreatic duct, which carries the pancreatic juices from the exocrine portion, joins the common bile duct, and both of them open into the duodenum as the hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter of Oddi. Together, the organs of the alimentary canal and the associated glands digest the food we eat and digest the undigested food. Every day, our body performs several important functions such as respiration, digestion, excretion, to name a few. Of these processes, digestion is a vital one, as it provides energy to the body by converting complex food into smaller, simpler and absorbable molecules. The digestion process begins the moment we put food into the oral cavity through our mouth. The teeth, present in the oral cavity, masticate the food, while the tongue mixes it with saliva, which is rich in electrolytes such as sodium, potassium, chloride, and bicarbonate ions, and various enzymes such as salivary amylase and lysozyme. Each of the salivary components has its own function. For instance, the salivary amylase, a carbohydrate-splitting enzyme, initiates the process of digestion in the oral cavity by hydrolyzing nearly 30% of food starch into a disaccharide or simple sugar called maltose. Whereas lysozyme acts as an antibacterial agent and kills microbes present in food substances, thereby preventing infections. Mucus, on the other hand,
lubricates the food and helps the masticated food particles stick together to form a bolus. Thereafter, the bolus passes through the pharynx and then into the esophagus by the process of swallowing or deglutition. Once the bolus enters the esophagus, a series of wave-like muscular contractions known as peristalsis pushes it down the esophagus and towards the gastroesophageal sphincter, a one-way valve that conducts the bolus from the esophagus into the stomach. The bolus remains in the stomach for nearly 4 to 5 hours, where it mixes with the gastric juices secreted by the gastric glands. These glands are stimulated by the gastrin hormone and inhibited by the enterogastrin hormone, and consist of mainly 3 types of cells: mucous neck cells, which secrete mucus; peptic or chief cells, which secrete the proenzyme pepsinogen; and parietal or oxyntic cells, which secrete hydrochloric acid and intrinsic factor, a type of microprotein that absorbs vitamin B complex. The churning of the stomach walls mixes these gastric gland secretions with the bolus, forming a pulp-like substance called chyme.